So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. In today's lecture, we are going to talk about organizational communication, the process of communication, as well as the technique of communication. The first one, Zohari window, which is very important for examination point of view. So let's study, but before that, if you're new to the channel, subscribe करें और बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें. Let's understand organizational communication. यहाँ पर कल्चर लिख गया है. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. यहाँ पर आप कम्युनिकेशन कर ले जहां पर ये कर्सर है. Organizational communication is. So organizational communication is defined as the channels and forms of communication that occur within organization. Within organization, employer employee की किस तरीके से communication हो रही है, employers की आपस में किस तरीके से communication हो रही है, employees किस तरीके से communicate कर रहे हैं. So ये channels or forms of communication that occur within the organization. That is corporations हो सकते हैं इन organizations में, non profits हो सकते हैं organization, governmental bodies हो सकती हैं. तो basically यहाँ पर जो different channels and forms of communication देखने को मिलते हैं वही organizational communication होते हैं. So इसमें दोनों ही communication कहीं ना कहीं शामिल है. That is communication जो internally अगर करती है within the organization and also public facing communications, that is those communications जो organization को करनी पड़ती है with the government, or we can say with the consumers or with the competitors or maybe with the investors. So it includes both communications within an organizations and public facing communication. We can say internal communication within an organization, also the public facing communication. So let's understand what exactly the process of communication is. So it's a 5-step process. Number 1 is sender. Sender is the one who send the message. So first of all, भाई message को भेजने के लिए sender का होना जरूरी है क्योंकि sender ही तो send करेगा message को. So the first step, the very first step is the person who send the message is known as sender. So sender क्या करेगा, वो कुछ time लेगा to create the information that they want to transmit as a message. So in the very first step, the sender, that is the person who send the message, take time to create the information they want to transmit. In the second step, encoding होती है. That is basically the sender translates the information, whatever the information that he wants to transmit, and give it to the receiver. He or she is going to translate that particular information into codes. इसका आसान भाषा में मतलब यही है कि भाई अपनी इंफॉर्मेशन को वो वर्ड्स में पुट करेगा या बेसिकली अंडरस्टैंडेबल चीजों में पुट करेगा, एक्सप्रेशंस में पुट करेगा. इट कैन बी द वर्ड्स, इट कैन बी द सिंबल, वॉइसेस और इन अदर फॉर्म्स. So here the sender translates information into code in order to make it understandable, and that is done in forms words, symbol, voices or in other forms. So that's what encoding is. In the third step, we have message. Our message is ready and prepared by the sender now. Message क्या है? ये subject matter है communication का. Communication, we can't imagine communication without actually having our subject matter of communication, because that is main. सब्जेक्ट मैटर कम्युनिकेशन का होना जरूरी है और वही मैसेज होता है जिसमें फैक्ट्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है और वो क्लियर और कंसाइज मैनर में प्रिपेयर होना चाहिए. ये भी इंपॉर्टेंट है. इन द नेक्स्ट स्टेप डिकोडिंग होती है. दैट मीन्स टू रिसीव मैसेज विच इज कन्वेड बाय द सेंडर and then translating that message into own language, understanding that message, ये समझने के लिए कि क्या सेंडर ने जो लिखा है क्या मैं सही तरीके से वो समझ पा रहा हूं या नहीं समझ पा रहा हूं. That is to receive message conveyed by the sender and then translating that message into own language. And that's the key to effective communication, that whatever the sender has conveyed to you, you are able to understand that or not. So decoding means to receive message which is conveyed by sender and then decode it, basically to understand or translate that message into one own language. And that's the key to effective communication. And then the last step, feedback, कि मैं समझ पाया हूं या नहीं जो सेंडर ने मुझसे कहा है. अगर नहीं समझ पाया हूं, so I'm going to tell that to sender. So that the feedback is important. The effectiveness of communication, it very much depends upon the feedback also. It is measured through feedback also. So feedback is a mechanism of providing response provide karna, whether the message is understood properly or not. If understood, tell the sender that yeah, it's understood. If it is not understood,
It's not understood. You have to tell that the same to sender. So this is the process of communication, starting from the sender to the feedback again to the sender. That's how it works in the organization or within the organization. So now let's talk about टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जोहारी विंडो. तो सबसे पहले द मॉडल डेवलप्ड बाय जोसेफ लुफ्ट और हार्वे इंग्लियम. सो हार्वे इंग्लियम और जोसेफ लफ्ट ने मॉडल डेवलप किया, और कहीं ना कहीं उन्हीं के नाम पर इस टेक्निक को नाम दिया गया, इस मॉडल को नाम दिया गया. देखो, जोसेफ का JO और हार्वे का HAR और इंग्लियम का I लिया गया, तभी तो कहीं ना कहीं जोहारी बना. जो और यहां से हार ई जोहारी. तो देखो, नाम भी इन्हीं दोनों के नाम पर लिया गया है. ये जो मेन नाम है जोहारी विंडो, अभी किस चीज में हेल्प करता है? बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड, ऊपर से समझो. जोहारी विंडो एक फ्रेमवर्क है ये समझने के लिए, क्या समझने के लिए, जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस बाइज होता है. एक होता है कॉन्शियस दैट वी आर अवेयर ऑफ, एक होता है अनकॉन्शियस दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ. तो अनकॉन्शियस और कॉन्शियस बाइज दैट कैन हेल्प इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस एंड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स, की लोग कैसे हैं. तो ये समझने में कहीं ना कहीं मदद करता है ये मॉडल. It's a framework for understanding the conscious and unconscious bias जो हमारे अंदर होता है, जो कहीं ना कहीं सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज करता है ये समझने में कि लोग कैसे हैं. अबाउट अदर्स अंडरस्टैंडिंग बेसिकली who they are and how they are. So it helps in analyzing the causes of interpersonal conflict also. जोहारी विंडो ऑल्सो हेल्प्स इन एनालाइजिंग द कॉजेज ऑफ इंटरपर्सनल कंफ्लिक्ट. जो आपस में इंप्लॉइज हैं उनके बीच में हो सकता है, विद इन द ग्रुप हो सकता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में हो सकता है. जब डिफरेंट थॉट्स के लोग मिलते हैं, डिफरेंट विचारों के लोग मिलते हैं, उनके अपने ओपिनियंस होते हैं, अपने सजेशंस होते हैं, अपनी वैल्यूज होती हैं, तो डेफिनेटली उनके बीच में कई बार टकराव होते हैं. सो उसको एनालाइज करने में कि भाई उन इंटरपर्सनल कंफ्लिक्ट के क्या कॉजेज हैं, उसको समझने में भी मदद करता है जोहारी विंडो, क्योंकि कहीं ना कहीं वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ पीपल, कि किस तरीके का बिहेवियर वो रखते हैं. सो इट सजेस्ट द नीड फॉर ओपन कम्युनिकेशन, एंड सिंस द मॉडल इज डेवलप्ड बाय जोसेफ एंड हार्वे, इसीलिए हम इसको जोहारी विंडो कहते हैं. सो दैट कैन बी इजिली एक्सप्लेन बाय द फिगर. लेट्स अंडरस्टैंड दिस फिगर फर्स्ट ऑफ ऑल. तो आप यहां पर देख सकते हैं एक विंडो बनाई गई है जिसमें आप 4 कॉलम्स देख सकते हैं. ओपन सेल्फ, हिडन सेल्फ, ब्लाइंड सेल्फ, अंडर कवर्ड सेल्फ. तो 4 चीजें आप देख सकते हैं. ओपन सेल्फ को हम ओपन एरिया भी कहते हैं, ब्लाइंड सेल्फ को हम ब्लाइंड एरिया कहते हैं, हिडन सेल्फ को हम हिडन एरिया कह सकते हैं, अंडर कवर्ड सेल्फ को हम अननोन एरिया भी कह सकते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड ये है क्या. सो वी कैन से इट कंप्राइज्ड ऑफ or it composed of 4 quadrants in which people using the framework can identify what they know about themselves, कि वो क्या जानते हैं अपने बारे में, and what other people know about them, और लोग उनके बारे में क्या जानते हैं, वो अपने बारे में क्या जानते हैं, और लोग उनके बारे में क्या जानते हैं. कहीं ना कहीं ये क्वाड्रेंट्स हमें ये समझाने की कोशिश करेंगे. So let's understand the 4 quadrants. The very first area is open self. तो open self के लेफ्ट में जब आप देखते हो तो आपको दिखता है the person knows about himself or herself. So anything that you know about yourself and you are also willing to share it with others, ऐसे लोग जो होते हैं वो ओपन एरिया या ओपन सेल्फ वाले होते हैं और इस ब्लॉक में शामिल है. So the person knows about others, यानी कि ऐसे इंडिविजुअल के बारे में लोग भी जानते हैं और वो खुद भी जानता है अपने बारे में. तो ओपन सेल्फ वाले इंडिविजुअल ऐसे होते हैं दैट नो अबाउट देमसेल्व्स आल्सो, और लोग भी कहीं ना कहीं उसके बारे में जानते हैं और उसको समझते हैं. सो ऐसे लोग ओपन सेल्फ के होते हैं. देन वी हैव द हिडन सेल्फ. हिडन सेल्फ में क्या है? द पर्सन डज नॉट नोन अबाउट अदर्स, द पर्सन नोज अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ. हिडन सेल्फ वाले इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो खुद को तो समझते हैं, वो खुद को समझते हैं, बट लोग उनको कहीं ना कहीं, दूसरे इंडिविजुअल, अदर पीपल उनको नहीं समझते. तो ऐसे हिडन सेल्फ के लोग होते हैं कि हिडन सेल्फ वाले लोग खुद को तो जानते हैं लेकिन लोग उनको नहीं जानते, लोग उनको नहीं समझ पाते कि हु दे आर. सो ऐसे लोग हिडन सेल्फ के लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं हाइड करके रखते हैं अपने सेल्फ को ताकि लोग उनको ना समझ पाए.
Blind self वाले लोग, the person knows about others, the person does not know about himself or herself. ब्लाइंड सेल्फ या ब्लाइंड एरिया वाले लोग ऐसे होते हैं that anything you do not know about yourself, कि लोग अपनी चीजें नहीं जानते कि वो कौन है, बट लोग उनको जानते हैं. ऐसे इंडिविजुअल जो खुद को नहीं पहचानते ढंग से, वो खुद के बारे में नहीं जानते, बट उनको बाहर के लोग अगर हम देखें, उनको दूसरे इंडिविजुअल्स जानते हैं कि वो कौन है. सो वो ब्लाइंड एरिया वाले लोग होते हैं. और अननोन एरिया या अंडर कवर्ड सेल्फ वाले लोग ऐसे होते हैं, या इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो ना तो वो खुद को समझते हैं, ना ही लोग उनको समझते हैं. तो लोग भी उनको नहीं समझते कि वो कौन है, और वो खुद को भी नहीं समझते कि वो कौन है. सो ऐसे लोग होते हैं अननोन एरिया वाले लोग. सो आई होप मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया होगा. ओपन एरिया, लोग भी उनको समझते हैं, वो खुद को भी समझते हैं, वो खुद को भी जानते हैं कि वो कौन है, लोग भी उनको जानते हैं कि वो कौन है. हिडन सेल्फ, द पर्सन डज नॉट नोन अबाउट द अदर्स, यानी कि लोग उनको नहीं जानते कि वो कौन है, बट वो जानते हैं कि वो कौन है. ठीक है. सो समझते हैं इस चीज को. ओपन सेल्फ. सो दिस इज एन आइडियल सिचुएशन. हियर द पर्सन नोज अबाउट हिमसेल्फ एंड अदर्स. बेसिकली यहां पर ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लिखी है और यहाँ पर गलत लिखा है. यहाँ पर होना चाहिए हियर द पर्सन नोज अबाउट हिमसेल्फ. यहाँ पर जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, वो खुद के बारे में जानता है, एंड अदर्स ऑल्सो अवेयर अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन बिहेवियर. और दूसरे भी जानते हैं उसके बारे में. ये होना चाहिए हियर द पर्सन नोज अबाउट हिमसेल्फ एंड अदर्स आर ऑल्सो अवेयर अबाउट द बिहेवियर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. सो हियर द पर्सन नोज अबाउट हिमसेल्फ एंड others are also aware about his or her behavior. तो ऐसा बंदा ओपन सेल्फ का होता है कि भाई लोग भी उसे जानते हैं और वो भी खुद को जानता है, तो वो ओपन सेल्फ का ही हुआ. There is openness, there is transparency in the behavior of people, and there is no little or no scope for any conflict. तो कहीं ना कहीं ये conflict को भी कम करता है कि भाई लोग भी हमें जानते हैं, हम भी लोगों को जानते हैं. एक ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ओपननेस रहेगी. फिर मैंने कहा हिडन सेल्फ होता है. हिडन सेल्फ का मतलब कि भाई लोग कहीं ना कहीं मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं खुद को जानता हूं. मैं खुद को जानता हूं मैं कौन हूं. लोग मुझे नहीं समझ पाते कि मैं कौन हूं, तो मैं अपने सेल्फ को हाइड करके रखता हूं. बिकॉज I'm not letting people to understand me, but I know who I am. That's what the hidden self is. I hope you got an idea. And that's why it is also known as private or secret area, because the person remains hidden from others because of the fear. एक डर हो सकता है कि लोग क्या रिएक्ट करेंगे. सो मे बी वो एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करे हमेशा और वो दिखाए जो वो नहीं है. Fear भी हो सकता है. So the person keeps his feelings, he keeps his attitude, secrets, and will not open up to others, which creates interpersonal conflict. The third is blind self. Blind self, as you can see in the figure, that here this quadrant, blind self, जहां पर कर्सर है, the person knows about others. The person does not know about himself. Blind self वाला एक ऐसा इंसान होता है. ब्लाइंड सेल्फ इसीलिए, वो ब्लाइंड एरिया इसीलिए क्योंकि ऐसा इंडिविजुअल खुद को नहीं समझता. वो नहीं जानता कि वो कौन है, बट लोग कहीं ना कहीं उसकी आइडेंटिटी समझ गए, लोग कहीं ना कहीं जान गए कि वो किस तरीके का है, लेकिन वो खुद को नहीं समझ पाया है. तो ऐसा ब्लाइंड एरिया वाला इंडिविजुअल होता है. तो दिस क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट्स द एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ व्हिच इज नॉट नोन टू हिमसेल्फ बट व्हिच इज फेयरली नोन टू अदर्स. यानी कि हमें नहीं पता हम कौन है, बट लोगों को फेयरली पता है कि हम कौन है, और उनको आइडिया लग गया है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है. वी डू मेनी थिंग्स विदाउट बीइंग कॉन्शियस ऑफ देम, बट अदर्स आर अवेयर ऑफ द फैक्ट्स. ये ब्लाइंड सेल्फ में होता है. और एक होता है अनडिस्कवर्ड सेल्फ, जिसको अननोन एरिया भी कहा जाता है, कि भाई ना तो आप खुद को जानते हो, ना तो आप खुद को समझते हो, ना ही दूसरे आपको समझते हैं या जानते हैं. सो दिस इज अ डार्क एरिया, बिकॉज ना आप खुद को समझते हो, ना आप खुद के सेल्फ को समझते हो, जानते हो हु यू आर, यू डोंट नो दिस, और ना ही सामने वाले को पता है कि हु यू आर. सो दिस इज अ मोस्ट एक्सप्लोसिव सिचुएशन व्हिच लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, बिकॉज neither you know about yourself nor the person in front of you, the others are also not aware about who you are. So this is an undiscovered self, or we can say the unknown area. So basically this model helps us to understand and solve conflicts among the group members in the organization. That's how this Zohari window works. ये समझने में मदद करती है और कहीं ना कहीं conflict को solve करने में मदद करती है by understanding this self and then working on feedbacks. So I hope you got an idea. Thank you so much. All the very best. Take care.